Dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSC Economics Chapter 2 Part 10. Dear friends, let me recap something. Till now, whatever we have studied in this chapter of utility analysis, हमने एक वर्ड पकड़ लिया था कि इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स बिहेवियर, इट मींस एज अ कंज्यूमर व्हेन आई गो टू मार्केट टू बाय समथिंग, व्हाट शुड बी माय बिहेवियर, हाउ डू आई बिहेव. For that purpose, we have to understand one word, and that is utility, the capacity of a commodity to satisfy a human want. Basically, it is of form utility, place utility, time utility, service utility, knowledge utility, and finally possession utility. It has some of the features like utility is subjective and relative concept. It has no ethics. It differs from satisfaction, usefulness. It is multi-purpose in some of the cases. It depends on intensity of want. It is different from pleasure also. It always measures in terms of money and it increases with knowledge. After that, we have understood the concept of relationship between total utility and marginal utility with one schedule and diagram. When total utility curve slopes upward, marginal utility curve slopes downward. When total utility curve is at highest level, marginal utility curve intersects the x-axis. In the end, when total utility curve slopes downward, marginal utility curve goes below x-axis. और वहीं से प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल has explained us law of diminishing marginal utility. In easier words, other things remain constant. When the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility satisfaction from it. Depends on some 6 assumptions like continuous consumption, uniform commodities, cardinal measurement, rational behavior, reasonable size, and no change in taste and preference of the consumers. It has some 6 exceptions like hobbies, miser, drunkard, reading, music, and money. According to me, all these are the exceptions, that is breaking of normal trend. In last 2 different sessions, I have explained you this concept. Exceptions means even after continuous consumption, my MU does not decrease, it increases in case of hobbies, miser, drunkard, reading, music, and money. But in first 5 examples, we were not able to fulfill the assumptions given by Alfred Marshall. And in case of money, so money itself is not a commodity, it is medium of exchange. And with the utilization of money, every time we satisfy different types of wants. We are not satisfying the same want again and again with the help of money. So ultimately we must say that all these are the exceptions to law of DMU, but these are not the real exceptions of law of DMU. ये सभी exceptions तो है, पर ये सभी real exceptions नहीं है. And that is why one statement is given that law of DMU is universally applicable because they have no real exceptions. So law of DMU is universally applicable. In one of the session we have covered criticisms, that is limitations, loopholes of law of DMU. Right? Friends, today our topic is importance of law of diminishing marginal utility. Importance of law of diminishing marginal utility. Friends, the answer, the topic is broadly divided into 2 different categories. Capital A, that is theoretical importance, and capital B will be practical importance.
अगर हम ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, इसको हम कहीं ना कहीं पिछले 6 लेक्चर से स्टडी कर रहे हैं। एक वर्ड को पकड़ लिया है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उस एक वर्ड को लेकर अगर हम 6 सेशन तक डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे एक आसान वर्ड ये था, एक आसान स्टेटमेंट ये था कि अगर मैं एक चीज़ बार बार लगातार इस्तेमाल करूँ तो आफ्टर सम ऑफ द टाइम मैं थक जाऊँगा, पक जाऊँगा, उब जाऊँगा। अब ये जो एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये इतना क्या इम्पोर्टेंट हो गया कि हम इसको 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना चाहेंगे। इट मीन्स व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ टॉपिक इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड आवर ओन बिहेवियर एज अ कंज्यूमर। मुझे अगर अपना खुद का बिहेवियर भी समझना है एज अ कंज्यूमर, तो मुझे लॉ ऑफ DMU को स्टडी करना चाहिए, ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। इतना ये क्या इंपॉर्टेंट है? सो दैट इज अवर टुडेज टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई रिपीट, the answer is divided into 2 different parts. Today we are covering only first part, and that is capital A, theoretical importance. फ्रेंड्स, हमारे पास 4 एग्जाम्पल होंगे डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि थियोरेटिकली अपनी लाइफ में लॉ ऑफ DMU कितना इम्पोर्टेंट है। When we will go for capital B, our second part, there is practical importance of law of DMU, जहाँ पे आई प्रूव विथ डिफरेंट 4 एग्जाम्पल्स अगेन कि प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ ऑफ DMU कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज 4 एग्जाम्पल होंगे जो मुझे समझाएंगे कि थियोरेटिकली अपनी लाइफ में लॉ ऑफ DMU क्या रोल प्ले करता है, फिलोसॉफिकली, मेंटली, एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कवर कि हाउ लॉ ऑफ DMU प्रैक्टिकली यूटिलाइज्ड इन आवर रूटीन लाइफ। सो टुडे कैपिटल A, theoretical importance of law of DMU. Our first point is consumers behavior. Now see, it's very funny thing, topic is also consumers behavior, and in that we have subtopic law of DMU, and in that again we have subtopic consumers behavior. It means if we want to understand consumers behavior, we need the help of law of DMU, and law of DMU helps us to understand how do we behave at the time of consumption when we go to market to buy something. हम जब कुछ भी खरीदने मार्केट जाते हैं तो अपना बिहेवियर क्या होगा, तो लॉ ऑफ DMU helps us to explain how a consumer tries to get maximum satisfaction at the time of consumption. How we always try to get maximum satisfaction. देखिए फ्रेंड्स, एज अ कंज्यूमर अपनी एक फितरत होती है, अपना एक नेचर होता है। जो चीज़ हमें पसंद आती है वो हमें थोड़ा और चाहिए, जो चीज़ हमें पसंद आती है वो चीज़ हमें थोड़ा और चाहिए। एंड दैट इज वाई वी हैव रिटन कि वी ऑलवेज ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप अपने फेवरेट फ्रेंड्स के साथ अपना कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का मूवी देखने जा रहे हो थिएटर में, शो का टाइमिंग भले ही शाम को 5 बजे का हो, सुबह से अगर प्रोग्राम बन रहा है ना, तो वी आर सो एक्साइटेड फ्रॉम मॉर्निंग मॉर्निंग। उस दिन नहाने का मजा कुछ और होता है, कपड़े पहनने का मजा कुछ और होता है, मिरर के सामने 10 मिनट बिगाड़ेंगे, एकदम खुश होते हैं। उस दिन फेस भी ग्लो करता है, हमें लगता है हम गोरे हो गए। ओके, अंदर से खुशी निखर रही है। और अगर सपोज थिएटर भी सुपर PVR जैसा थिएटर हो, मूवी सच में बहुत मस्त हो और आपने एंजॉय भी काफ़ी किया हो, तो जब मूवी खत्म होने की तैयारी हो ना, तब हमें लगता है कि ये थोड़ा और होना चाहिए, वी आर स्टिल एंजॉय, तो ये थोड़ा और चाहिए। अगर आप कभी स्कूल में से 1 डे पिकनिक गए हो, अगर ये पिकनिक एकदम ढांसू थी, फुल्ली एंजॉयबल थी, तो जब हम रिटर्न आते हैं बस में, ओके, जब स्कूल नज़दीक आने लगे, तो ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टूर होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 1 नाइट का स्टे होना चाहिए था, हमें थोड़ा ये पिकनिक और चाहिए, या फिर ऐसी पिकनिक साल में 4-5 बार चाहिए। तो वॉट एवर वी लाइक, वी नीड मोर ऑफ दैट थिंग टू गेट मोर सेटिस्फेक्शन।
तो एज अ कंज्यूमर वी ऑलवेज ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो लॉ ऑफ डीएमयू में मैंने जो सॉरी लॉ ऑफ डीएमयू में मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कबीर सिंह मूवी का, जब मुझे वो मूवी पसंद आने लगे तो मुझे थोड़ा और देखना है, एक बार और देखूं, एक बार और देखूं। तो वी ऑलवेज ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर्स बिहेवियर। फ्रेंड्स, आवर सेकंड पॉइंट इज basis for other economic laws. Law of diminishing marginal utility given by Alfred Marshall provides the base, ये pillar है friends. All other economic laws which whatever we study in future, all that laws depends on law of DMU. मैं ये बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि law of DMU जो है ना, there is a origin. बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी कायदे, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जितने भी थियरीज हम पढ़ेंगे, वॉट एवर थियरी वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स, ओके, डिपेंड्स ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, वॉट एवर थियरीज वी हैव, वॉट एवर लॉज वी हैव, वॉट एवर, ऑल द थियरीज एंड लॉज डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. So we must say कि law of DMU given by Alfred Marshall provides the base for all other economic laws, whatever we have, whatever existed in this world, from economic point of view, from business point of view, from benefit point of view. Let me give you superb example, that is law of demand. Friends, अभी हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 में we have law of demand in detail. लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड एक इतना आसान कायदा है कि अगर मेरे पेरेंट्स अनपढ़ भी है तो भी उनको ये कायदा पता है. लेट मी क्लैरिफाई कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या. अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कोई चीज़ मार्केट में आके खरीदनी है, पसंद नहीं, खरीदनी है, आई वॉन्ट टू मेक डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी पर्टिकुलरली, एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू परचेज, दैट इज डिमांड. ओके, तो आसान सा स्टेटमेंट है, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. अगर बाकी की पूरी दुनिया ठहर चुकी है, थम चुकी है, रुक चुकी है, द लार्जर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा. अगर मैं इसको और आसान वर्डिंग्स में बोलूँ इन माय लैंग्वेज, हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड. अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसका डिमांड कम है सॉरी, और अगर कोई चीज़ सस्ती है तो उसका डिमांड ज़्यादा है. ये लॉ ऑफ डिमांड है फ्रेंड्स, जो हम चैप्टर 3 में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. टुडे आई एम ओनली इंट्रोड्यूसिंग दिस लॉ ऑफ डिमांड. लेट मी गिव यू एग्जांपल. प्लाज्मा टीवी करके एक टीवी आता है फ्रेंड्स, ये एक तरह का टीवी है, प्लाज्मा टीवी, बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, 1.5 लाख रुपए का टीवी है. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, अपने में से आई डोंट थिंक कि अपने में से 1% पब्लिक के पास भी प्लाज्मा टीवी होता हो. इवन मेरे घर पे भी आज की तारीख में भी नहीं है. ओके फ्रेंड्स, और उसमें शर्माने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि टीवी जैसा टीवी है. अब एक बात बताऊं, अगर मुझे 1.5 लाख का टीवी परवड़ता भी हो तो भी मैं नहीं लूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मेरा 1.5 लाख वसूल नहीं होने वाला है. अरे मैं तो दिन भर लेक्चर में रहूँ तो घर पे टीवी देखेगा भी कौन, बाजू वाले आके एंजॉय करेंगे. और अल्टीमेटली टीवी ऐसा टीवी होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसमें अगर मर्डर मूवी का गाना आएगा, भीगे होठ तेरे, ऐसा कोई गाना आएगा तो मुझे ऐसा फील होने वाला है कि उस गाने में मैं खुद हूँ. ऐसा तो कोई इफेक्ट नहीं है. अरे टीवी ऐसा टीवी है, ओके, जैसा नॉर्मल टीवी में देखता है ऐसा उसमें दिखेगा, तो उसमें 1.5 लाख मेरा वसूल नहीं होता है. तो अगर मुझे 1.5 लाख रुपया परवड़ता भी हो, then too I will not make consumption of that plasma TV. मैं वो परचेज नहीं करूँगा. तो प्लाज्मा टीवी की जो कंपनी है, अगर वो ये सोचती है कि हम रोज के 10 टीवी यूँ बेच देंगे, रोज के 10 टीवी यूँ बेच देंगे, अरे नहीं बेच पाएंगे. देखिए मॉल में, बड़े बड़े मॉल में अगर आप राउंड मारते हो ना तो प्लाज्मा टीवी वहाँ पे लगा होता है. लोग सिर्फ देख के कुछ मस्त है निकल जाते हैं, थोड़ी ना वो खरीदने बैठेंगे सब लोग. तो प्लाज्मा टीवी 1.5 लाख रुपए का एक टीवी है,
अगर वो ये सोचते हैं टीवी की कंपनी कि हम रोज के 10 टीवी बेच देंगे, नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड कम है। और डिमांड इसलिए कम है क्योंकि कंज्यूमर के हिसाब से उसका 1.5 लाख रुपया वसूल नहीं होता। अब रिवर्स एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी स्टेशन के बाहर अगर हम निकले ना, अंधेरी स्टेशन के बाहर निकले ईस्ट साइड, तो बहुत सारे फुटपाथ पे लेडीज सैंडल लेके बैठे होते हैं, चप्पल बेचने के लिए, लेडीज सैंडल बेचने के लिए ऐसा ढगला करके बैठे होते हैं। लोटस ले, लोटस ले, लोटस ले, लोटस ले, 60 रुपया, 60 रुपया, 60 रुपया, 60 रुपया, लोटस ले, 60 रुपया। ओके फ्रेंड्स, अब ये 60 रुपये में आप ये मत सोचिए हाँ मेरी भी प्रैक्टिस है, साइड बिजनेस है ना। फ्रेंड्स लेट मी क्लैरिफाई, वो बोल रहा है कि मेरे पास ढगला पड़ा है, लोटस सेल है, लॉट में है और 60 रुपये। अगर वो बंदा सोचता है कि मैं रोज के 100 पेयर यूं बेच दूँ, तो आसानी से बेच पाएगा। एक एक लेडी कभी कभार 5-5 पेयर लेके निकल जाती है, क्योंकि 60 रुपीज़ ही है। अगर 1 महीना भी चला तो पैसा वसूल। अरे एक दिन का 2 रुपया डेप्रीसिएशन, और क्या। और अगर किसी लड़के ने छेड़ दिया किसी लड़की को गुस्सा आया, उसने सैंडल उठा के फेंक भी दिया, और अगर लड़के को यहाँ पे थोड़ी हो गई तो भी पैसा वसूल। 60 रुपये में लड़की की सोच ये है, लेडीज की सोच ये है कि हमारा पैसा वसूल है, और इसलिए वो एक दिन में 100 पेयर भी आसानी से बेच पाएगा। प्लाज्मा टीवी के मामले में मेरा 1.5 लाख रुपया वसूल नहीं है, इसलिए वो बंदा रोज के 10 टीवी भी नहीं बेच पाएगा, शायद महीने के 10 टीवी बेचे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड मार्शल के दिमाग में आया कहाँ से? तो बोले लॉ ऑफ डीएमयू से। कैसे? लेट मी क्लैरिफाई। 1.5 लाख रुपया प्लाज्मा टीवी के पीछे मैं खर्चूं तो वसूल नहीं हो रहा है, तो आई एम नॉट गेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ प्लाज्मा टीवी बाय पेइंग 1.5 lakhs। बट इन केस ऑफ लेडीज सैंडल, गर्ल्स आर थिंकिंग कि 60 रुपीज तो वसूल है, एंड दैट इज व्हाई दे आर रेडी टू परचेज 5 pairs also at 60 rupees each। तो उनका वो पैसा वसूल है, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो सस्ता है। पर सस्ता क्यों लगा? क्योंकि उस केस में पैसा वसूल है, तो दे आर गेटिंग एडिशनल सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ लेडीज सैंडल ऑफ 60 रुपीज ईच। तो लॉ ऑफ डीएमयू से ही मार्शल के दिमाग में लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट हुआ। सो लॉ ऑफ डीएमयू provides the base for all other economic laws. That was our second point, basis for other economic laws. Friends, our third point is, and that is paradox of value. यहाँ पे let me clarify the word paradox. When we use this word paradox of value, पैराडॉक्स का मतलब होता है ओपोजिट बिहेवियर। अगर मैं छोटे छोटे एग्जांपल से क्लियर करूं, नेचर, प्रकृति जो है नेचर ऑलवेज बिलीव इन ओपोजिट बिहेवियर। जब अपने में से अगर किसी को बुखार आता है फ्रेंड्स, फीवर, तो अपने को ठंड लगती है, जबकि अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो शरीर गर्म होता है, हमें ठंड लग रही है। ऑपोजिट बिहेवियर। ओके फ्रेंड्स, आसमान में अगर पूरे बादल छा जाए, बहुत सारे बादल आ जाए, पूरा आसमान बादलों से भर जाए, बादलों के अंदर बारिश का ठंडा पानी है, पर नीचे धरती पे गर्मी बढ़ जाती है। अगर बारिश ना हो और सिर्फ बादल छा गए हो तो नीचे गर्मी बढ़ जाती है, जबकि बादलों के अंदर बारिश का ठंडा पानी है। अगर 2-3 घंटे तक बारिश गिरता रहे कंटिन्यूसली, और उसके बाद अगर आप कभी नंगे पे रोड पे दौड़ो, रास्ते पे कभी दौड़ो नंगे पे, तो रोड जो है ना वो गर्म भाप छोड़ता है, जबकि उसके ऊपर 3 घंटे तक बारिश का ठंडा पानी गिरा था। तो इट इज ओपोजिट बिहेवियर, दैट इज पैराडॉक्स। अगर अपने में से किसी को भी 10th तक इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच ऐसा कोई टॉपिक याद हो, फिगर ऑफ स्पीच, तो उसमें एक टॉपिक होता है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में 2 अलग बातें होती थी। मैं आपको
आपको इजीली समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर नहीं है जो मैं बोलने रहा हूँ। वो तो मरते मरते अमर हो गया, मरते मरते अमर हो गया। तो मरा के अमर हो गया, क्योंकि अगर मर गया टपक गया है तो अमर कैसे हुआ, और अगर अमर है तो टपका क्यों, टपका कैसे? वो तो मरते मरते अमर हो गया, मतलब वो खुद मर गया, नाम अमर कर गया। ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू, आंसू आंख से निकलते हैं, खुशी होठों से छलकती है। अब अगर होठों से आंसू छलक रहे तो वो तो थूक बन गया, तो खुशी के आंसू कहाँ से आए? पर एक कहावत है, ये तो खुशी के आंसू है। तो वी ऑलवेज बिहेव इन ऑपोजिट मैनर, नेचर ऑल्सो ऑलवेज बिहेव in opposite manner. The same thing, law of behavior explain us with paradox of value. अब मैं इस टॉपिक को परफेक्टली एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूं, क्योंकि 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक काफी बार आ चुका है फ्रेंड्स। आई रिपीट, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए ये टॉपिक काफी बार आ चुका है, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इफ एनी कमोडिटी is freely available, easily available in nature, in market, then it has no money value, even though it is very useful in our life. Exactly opposite. If any commodity product is very scarce in nature, in market, it has greater money value in the minds of people, even though it is useless in our life. आप बोलेंगे सर इतना सारा आप हिंदी में मत बोलो, इंग्लिश जाओ। डोंट वरी, एग्जाम्पल डिटेल में समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल वाटर, डायमंड, पैराडॉक्स। फ्रेंड्स, जो चीज बहुत सारी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, भले ही अपनी लाइफ में बहुत काम की हो, हम उसकी कदर नहीं करते, हम उसके लिए कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते। और जो चीज मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम अवेलेबल है, फिर भले वो लाइफ में कोई काम की ना हो, यूजलेस हो, then too we are ready to make a greater amount of rupees. हम ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं, जबकि उसका कोई यूज नहीं है लाइफ में। एक्सीलेंट एग्जाम्पल इज वाटर, डायमंड, पैराडॉक्स। फ्रेंड्स, वाटर इज मोस्ट एसेंशियल नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, without which we can't live for a day also. Then too, for the use of water, we are not ready to make a payment of single rupee, 1 rupee also. While exactly opposite, diamonds are totally useless in our life. Totally useless. Diamonds का कोई use नहीं है. Then too, for the use of diamonds, we are ready to make payment of lakhs of rupees, thousands of rupees. आप बोलेंगे सर तो पानी का भी पैसा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझा दूँ, आप और मैं घर पे जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसका जो बिल भरते हैं, पानी का जो बिल भरते हैं, वो पानी का पेमेंट नहीं है फ्रेंड्स, वो पानी का चार्ज नहीं है। बिलीव, बीएमसी मुंबई से 90 किलोमीटर दूरी से बादशाह नाम का एक डैम है, वहां से पाइपलाइन के थ्रू पानी अपने घर तक पहुंचाती है फ्रेंड्स, जो पानी नल में आता है। देखिए बात समझ लीजिए, आपके और मेरे घर पे जो पानी आता है वो पवई लेक से नहीं आता है फ्रेंड्स। पवई लेक का पानी तो हमने सत्यानाश कर दिया है, वो यूजेबल है ही नहीं हमें। ओके, वो तो इंडस्ट्रियल यूज भी नहीं रहता है, तो अपने घर पे क्या यूज करेंगे, वो तो केमिकल वाला हो चुका है। तो हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी को अपने नल तक पहुंचाने का एक लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स। उसको फिल्टरेशन करना पड़ता है, उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, ओजोनाइज करना पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस है, और उसका वो चार्ज लगाते हैं और उसका हम वो पेमेंट करते हैं। अदरवाइज पानी का कोई पैसा नहीं है फ्रेंड्स। पानी तो बारिश में फ्री में गिर रहा है, फोकट में गिर रहा है, और इसलिए हम कभी उसकी कदर करते ही नहीं है। बिलीव मी फ्रेंड्स, पानी कभी कोई बनाता नहीं है। अगर आप मुझे बोलेंगे सर एक्वाफिना, बिस्लेरी, ये लोग जो पानी का मिनरल वाटर जो बोतल भरते हैं 30 रुपया जो चार्ज करते हैं, फ्रेंड्स वो पानी का पैसा नहीं है, वो लोग भी पानी बनाते नहीं है, वो लोग पानी को सिर्फ प्योरीफाई करते हैं। बिलीव मी, कभी बिस्लेरी एक्वाफिना की बोतल पे देख लेना, कहीं पर नहीं लिखा है कि इट इज मिनरल वाटर बॉटल, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है प्योरीफाइड टैप वाटर बॉटल। पानी को प्योरीफाई करते हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग वाटर। बहुत सालों पहले फ्रेंड्स फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में
पानी प्रोड्यूस किया था H2O के फॉर्मूला से, H2O के फॉर्मूला से, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, उसका कॉम्पोजिशन। ओके, एक एक बूंद पानी जब उसने बनाया और जब एक ग्लास पानी भर गया तो उसका जो खर्चा उसको आया था सालों पहले, अगर मैं उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो इट वॉज नियर टू 11 लाख रुपीज। 11 लाख रुपए का एक गिलास पानी बनता है फ्रेंड्स। हम रोज के 10 गिलास पानी फोकट में पी जाते हैं और फिर बोलते हैं हम तो गरीब लोग हैं। अरे 1 करोड़ रुपए का तो हम पानी पी जाते हैं रोज का। फ्रेंड्स, अगर ऊपर वाले की इबादत कभी करनी हो, अगर सबसे बड़ी प्रार्थना प्रे समझनी हो, मुझे तो कोई मंदिर मंदिर समझता नहीं है फ्रेंड्स, अपने को कोई पूजा पाठ भी नहीं समझे अगर। ओके, जब आप मटके से पानी भरते हो पीने के लिए, देखिए फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे किडनी को डैमेज होता है। अगर आप मटके का पानी भरते हो पीने के लिए, तो जब आप नल से पानी भर रहे हो, ऊपर वाले को दिल से थैंक यू बोल दीजिए। 11 लाख रुपए का पानी उसने फोकट में अपने को पीने को दिया है। पानी का पैसा हम नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है कि मैं फेंक रहा हूं तो डू वन थिंग, आप अपने घर पे बीएमसी को कंप्लेंट कीजिए, आपके घर का पाइपलाइन कट करा दीजिए। ओके, आपके घर का, मेरे घर का नहीं, आपके घर का। और बाद में पवेल एक से बकेट भर भर के पानी ले जाइए। कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा, मांगे ना तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा, क्योंकि पानी का पैसा होता ही नहीं है। क्योंकि पानी बारिश में फोकट में गिर रहा है। वो काम कीजिए, अगर अपने मुंह में 4-5 दिन पानी नहीं आए तो हम मर जाएंगे, फिर भी पानी के लिए हम पैसा देने को तैयार नहीं है। अगर प्यास लगी हो और पड़ोसी के घर पे आके बोलेगा हमारे घर पे पानी नहीं, 1 गिलास पानी दीजिए ना, तो क्या वो 5 रुपया पैसा मांगेगा? अगर मांगेगा तो क्या बोलेंगे, साला जहन्नुम में जाएगा, पानी का पैसा मांगता है। जबकि पानी बहुत यूजफुल है, पर हम उसका पैसा देने को तैयार नहीं है। अगर मैं पानी का ग्लास लेके छिड़कू आपके ऊपर तो आप, अरे सर बिहेव योरसेल्फ, अरे सर क्या कर रहे हो, शिट, उसका उल्टा सोचो, मजा आएगा। अगर मैं डायमंड फेंकू सब, सर इधर भी। फ्रेंड्स, डायमंड्स इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज पॉइजनस। देखिए मैं आपको पैराडॉक्स बिहेवियर बता रहा हूँ। पानी वो है कि अगर मेरे मुंह में नहीं गया तो मैं मर जाऊं। डायमंड वो है कि अगर मेरे मुंह में जाए तो मैं मर जाऊं। डायमंड इज पॉइजनियस। अगर डायमंड मुंह में चला जाए तो इंसान मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा वो, क्योंकि वो पॉइजन है। ओके, फिर भी डायमंड के लिए हम लाखों रुपया देने को तैयार है। डायमंड का यूज क्या है? यूज तो कुछ नहीं, शो ऑफ, ऐसा शो ऑफ करने का, बाकी तो कोई यूज नहीं है। पानी का तो बहुत बड़ा यूज है, फिर भी उसके लिए 5 रुपया नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। डायमंड का कोई यूज नहीं है, पर लाखों रुपए देंगे। और क्यों देंगे? बिकॉज डायमंड्स आर वेरी स्कैर्स, वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज ज्यादा अवेलेबल नहीं है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो चीज कम अवेलेबल है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो चीज इजीली मिल जाती है तो फिर उसकी कोई कदर ही नहीं करेगा, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो लॉ ऑफ डीएमयू मुझे समझा रहा है कि इन केस ऑफ डायमंड्स, इवन तो इट इज यूजलेस, पीपल आर रेडी टू पे हायर अमाउंट because they are very scarce in nature. Water is very useful in our life. Then too, people are not ready to make a single rupee payment for the use of water because it is freely available in nature. बारिश में गिर रहा है, टपक रहा है, कोई कदर ही नहीं करता। तो it is paradox of value. That was our third point. Our fourth and last point for this session is universal truth. Friends, law of DMU explain us that we can satisfy only a single want at a time. हम एक वक्त में सिर्फ एक ही इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हम एक वक्त में कोई भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। We can satisfy only a single want at a time. एक बात समझ लीजिए, भले आप कॉमोडिटी 2 यूज करो या 20 यूज करो, पर उसके पीछे जो पर्पस रहेगा, इंटेंशन, वो अपना एक ही इच्छा पूरी करने का होगा। एंड दैट इज वाई हम एक का एक चीज इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मार्शल ने लॉ ऑफ डीएमयू में कह दिया। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दे पाऊँ, अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो 2 काम एक साथ करते हैं, ऐसा किसी बोला एक वक्त में एक ही काम होता है। बुजुर्ग काफी बार समझाते हैं कि एक वक्त में एक ही काम करने का, अगर 2 नाव में सवार हो गए तो डूब जाओगे, अगर 2 घोड़ों की सवारी एक साथ करोगे तो गिर जाओगे। ओके, ऐसा बुजुर्ग लोग समझाते रहते हैं, अपने को समझता नहीं, सब पकते रहता है वो सब, है ना। पर थोड़ा सोचा जाए, अगर हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, इट इज फैक्ट। ये एक ऐसी हकीकत है जो लॉ ऑफ डीएमयू प्रूव कर रहा है। अगर आप में से कुछ लोग मेरे जैसे हैं
कि हम टीवी भी देखते हैं और खाना भी खाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ हंगरनेस, तो हमारी तो दो इच्छाएं पूरी हुई। यू आर राइट। चलो मान लिया इस बात को थोड़ी देर के लिए कि अब मैं टीवी भी देख रहा हूँ और मैं खाना भी खा रहा हूँ, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, और एक सनातन सत्य को सामने लेकर आते हैं। ओके, सपोज मेरे घर पे संस्कार टीवी या आस्था टीवी चल रहा है, टीवी में भजन चल रहा है और मेरा भोजन चल रहा है। वहां पे सपोज भजन चल रहा है, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। अरे बाल देखा तो निकाल दिया तुमने, खा जाऊंगा। ओके, सपोज अब चपाती खत्म हुई, मैंने मम्मी को कहा मम्मी चपाती चाहिए, मम्मी एक रूम छोड़ के किचन में गई है, मुझे पता है मम्मी को एटलीस्ट आधा मिनट लगने वाला है, टीवी का रिमोट बाजू में ही था। ओके, मैंने तुरंत चैनल चेंज किया और म्यूजिक चैनल लगाया जहाँ पे गाना आया, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। फ्रेंड्स, समझना क्या था, इफ यू ऑब्जर्व मी वेरी केयरफुली, जब वहां पे भजन चल रहा था तो मेरा ध्यान भोजन में था, एक एक चीज देख रहा था, बाल निकाल के देखा। ओके, जैसे ही वहां पे गाना आया, मेरा खाने का निवाला यहीं पे रुक गया, वो यहां से यहां तक नहीं आया। जब मेरा इंटरेस्ट भोजन में है तो मैं भजन को इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ सुन रहा था। जब मेरा इंटरेस्ट गाने में चला गया तो खाना साइड पे रह गया। आप में से जितने भी लोग टीवी देखते हुए होमवर्क करते हैं, कभी भी टीवी देखते हुए, है ना, अगर कोई आईपीएल मैच देख रहा है और साथ में अकाउंट्स का होमवर्क भी कर रहा है, जब डेबिट क्रेडिट का कॉलम रेडी कर दिया फॉर्मेट और आईपीएल का पहला ओवर शुरू हुआ, यूं बैठ जाएगा। हर ओवर खत्म होने के बाद ब्रेक आएगा ना, तो उसमें कहा था अच्छा ओके, 20 ओवर खत्म हो गई, एक से क्रेडिट नहीं हुआ है, एक ट्रांजेक्शन। अगर कोई लड़की स्टार प्लस पे सीरियल देखने बैठती है, शाम को 7 बजे से शुरू करेगी, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सीरियल देखेगी, करेक्ट। अगर वो होमवर्क लेके बैठी है, मम्मी पापा खुश है कि चलो होमवर्क कर रही है लड़की को पूछो, एक एंट्री आगे नहीं गई है, जबकि 5 सीरियल वहां पे खत्म हो चुकी है, एक एंट्री आगे नहीं गई है। अरे अपने में से बहुत लोगों के घर पे जब मम्मी है ना सीरियल देख के झाड़ू मारे थे ना, तो झाड़ू यूं करके सीरियल देखते यूं, पीछे से पापा कमेंट पास करते बहुत बार कि झाड़ू रख दे मैं मारूं। देयर इज अ सिचुएशन, क्योंकि मम्मी का ध्यान उसकी साड़ी में है, उसके ऑर्नामेंट्स में है, तो झाड़ू यूं ही थम गया। तो वी आर एबल टू सेटिस्फाई ओनली अ सिंगल वांट एट अ टाइम। दैट वाज फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सल ट्रूथ. So today we have covered 4 different examples for theoretical importance of law of DMU. In our next session, we will cover practical importance. Please take care of yourself. Thank you so much. Soon I'll approach you again.